Today we are going to continue the fifth question, that is cell is the basic unit of life. So you have to explain the statement that cell is the basic unit of life. Lesson में अपन लोग पढ़े right? और explain the structure that is considered as basic unit of life. So the first point, cell is the structural and functional unit of life, right? सबको मालूम है cell क्या है? Basic, structural और functional unit है life. The body of living being is formed by only cells and their products. Living being bodies are formed by only cells or their products. All cells possess similar physical and chemical composition. Right? Cells possess similar physical or chemical compositions. Each cell is capable of existing independently. Right? Each cell is capable of existing independently. यानी कि हर सेल independently exist होता, right? Each component parts or cells organelles which are unable to do so. जो cell organelles cell parts है वो नहीं हो सकते independently exist, खाली cell होते, right? New cells develop from division or pre-existing cells. New cells कैसा develop होते? जो एक cell single cell था वो divide होता, right? Divide होके new cells develop होते और pre-existing cells से pre-existing cell वो तो जो पहले से मौजूद रहते ना वो cells divide होके new cells develop करते. Each cell contains the whole complement of genetic information not only for itself but for the whole organism. हर सेल क्या करता? पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता, ना कि खुद सेल के लिए बट फॉर द होल ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट? ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ इट्स सेल्स. यहाँ पे क्या है? ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व डिवीजन, यानी कि एक एक सिंगल जाके क्या होते? डिवाइड होते और सेल्स को बढ़ाते. लाइफ इज एक्सप्रेस्ड ओनली इनसाइड द सेल. लाइफ को अपन सिर्फ सेल के अंदर ही एक्सप्रेस कर सकते, राइट? सेल्स आर द यूनिट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. सो सेल्स क्या है? यूनिट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. जो भी अपन करते हैं एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उस हिसाब से सेल्स को क्या बताया गया? पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, who and when was the cell theory proposed? When did they prepare it? What are its silent features of it? कौन और कब सेल थियोरी प्रपोज करे, राइट? कब वो लोग ऐसा मतलब बनाए ये सेल थियोरी के ऊपर और क्या फीचर्स बताए सेल थियोरी के, राइट? तो व्हाट इज द सेल थियोरी? सेल थियोरी क्या है, कौन और कब इसको प्रपोज करे और इसके कुछ प्रिंसिपल्स, कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो है थियोरी के क्या है? So the answer is both Schleiden and Swan discussed their findings about cell and proposed cell theory in 1838. So in your lesson you have already studied Schleiden and Swan. These two scientists discussed about their findings, what they have find about the cell. Then they proposed the cell theory in 1838. The modern form of cell theory states that, तो जो लोग फाइंड करके बताए उसके हिसाब से ये आप लोगों को यहाँ फीचर्स दिए गए हैं. All the living organisms are made up of cells and their products. हर living organism सेल से बना हुआ है और सेल्स के प्रोडक्ट से बना हुआ है. All the cells are formed from pre-existing cell. हर सेल कैसा डेवलप होगा? जो मौजूदा सेल्स थे pre-existing cells उससे डिवाइड होके दूसरे सेल्स फॉर्म होते. All the cells are made up of similar chemicals and show similar metabolic activities. पूरे सेल्स सिमिलर केमिकल से बने हुए रहते हैं, राइट? और सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बताते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? टू मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड द ऑर्गेनिज्म, राइट? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी होता ना फंक्शंस उसको मेंटेन करते, राइट? वो मेंटेन करने वाला प्रोसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो इसमें सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहते हैं. Functioning of an organism depends on the function carried out and the interaction of different cell present in the organism. तो organism कैसा function करता? Based on the functions of different cells which are going inside the organism, right? जो cells अंदर interact होके function कर रहे हैं उस हिसाब से organism, living organism काम करता, function करता, right? Understand? 7th question. What happens if plasma membranes ruptures or break? Or Sneha said that if plasma membrane break, the cell will die. Why it happens like that?
सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो गया तो क्या होता पूछ रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, राइट। रप्चर्स भी टूटने को बोलते हैं, ब्रेक भी टूटने को बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है। तो इसने यहाँ पे बोल रहे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया तो सेल मर जाता, क्यों ऐसा होता बोल के पूछ रहे। तो आंसर देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर टू द प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा एक्ट करता बोल रहे, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मीन्स पूरे चीजों को कंटेन करके एक प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह कवर करके रखना, राइट, रोक के रखना, कोई चीज को रोक के रखना। तो प्रोटोप्लाज्म जो इंटरनल कंटेंट्स रहते हैं इन पूरों के अतराफ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा एक्ट करता, मैकेनिकल बैरियर, ये पूरे चीजों को रोक के रखने का काम करता। इफ रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स, द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स विल बी डिस्पर्स्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गया तो जो भी ये सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स रहते हैं वो पूरे डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स बोल तो फैल जाना, स्प्रेड होके बाहर आ जाते हैं सराउंडिंग मीडियम में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने से ये पूरे कंटेंट्स बाहर आके स्प्रेड हो जाते, राइट। सो द सेल विल डाई ड्यू टू इम्बैलेंस इन मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो सेल मर जाता ड्यू टू इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब कंट्रोल नहीं कर सके, वो जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए मैकेनिकल बैरियर एक्ट कर रहे थे, वो इम्बैलेंस होके नहीं संभल के पूरे चीजें बाहर आके डिस्पर्स हो जाती, स्प्रेड हो जाती कंटेंट्स, सेल मर जाता। अंडरस्टैंड।